Students, today we are going to do worksheet 10 of class 8. Here you have to write the name of the student and here the name of the teacher. So let's start. We are going to do linear equation in one variable. So we must know what is the meaning of linear equation here. When we write any equation, for example, x plus 3 is equal to 9. So this is an equation. Here it is called left hand side and it is called right hand side. And both LHS is equal to RHS. Here students, you are seeing x is a variable. It is a variable. And 3 and 9 are constants. So when the power of variable in any equation is 1, or for example x plus 3 is equal to 9, this equation I have written. So here the power of x is 1 and power of 0 is equal to 1 and x means it is power 1. The power of x is 1, so it is equal to x. X raised to the power 1 is equal to x. X raised to the power 0 is equal to 1. So when there is one power of any variable, then that equation is called linear equation. We can also say, for example, if there is another equation, let n plus 1 is equal to 10. So here n is the variable and the power of n is 1. In place of this, if it is written n square plus 1 is equal to 10, then this is not a linear equation because the power of the variable is 2. Okay, so the equation will be linear only when the power of the variable is 1. Now second thing is, here one variable, and in that equation there should be only one variable. Linear equation in one variable. When the equation is linear, when the power of the variable is 1 and the variable should be 1. For example, if we are writing z plus 2 is equal to 3, then it's an equation, linear equation with one variable, and that variable is z. But if we are writing x plus z is equal to 3, so there are two variables. Then there are two variables. If we are writing that x plus z is equal to 3, then there are two variables. And what are the names of the variable? Variable is x and z. And we have to study about only one variable. So it is not a linear equation. It is a linear equation, but not with one variable. It has two variables. So this we don't have to study. Okay. So I think now you are clear about a linear equation. Linear equation means an equation in which the variable has power 1. Okay. So the next is, now we are going to study an interesting puzzle. There is an interesting puzzle. Mukta madam took out a handful of marbles from a bag and put them into another bag. मुक्ता मैडम क्या करती हैं
कि एक बैग में से कुछ मार्बल्स निकालती हैं और दूसरे बैग में डाल देती हैं, एंड लम्प्ड दैट बैग एंड सेड टू द चिल्ड्रन दैट कैन एनीवन फ्रॉम यू टेल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स विदाउट ओपनिंग द नॉट, काउंटिंग द मार्बल्स एंड टीयरिंग द बैग। कि कोई भी ये बता सकता है कि अब इस बैग में कितने मार्बल हैं, ना तो आपको उस बैग की नॉट गांठ को खोलना है, ना तो आपको उन मार्बल्स को काउंट करना है, और ना ही आप उस बैग को फाड़ कर देख सकते हो कि कितने मार्बल हैं। देन व्हाट हैपेंड? फातिमा, a student of that class, answered. And what was her answer? Do you know what has been done by Fatima? Fatima ने क्या किया? She removed a marble from the first bag. उसने फर्स्ट बैग में से एक मार्बल निकाला and weighted in it on the pan. ये जो तराजू होता है उसने इसमें उसका वेट देखा, it has 10 grams, तो 10 grams था। Now फातिमा weighted the whole second bag. अब उसने दूसरे बैग को का वेट किया। मैम जिसमें पूछ रही थी ना कि कितने मार्बल्स हैं, तो उस बैग का जिसमें वो पूछ रही थी कि कितने मार्बल्स हैं, उस बैग का वेट आया 330 ग्राम्स। 330 ग्राम्स आया। देन द फातिमा बिकेम हैप्पी एंड सेड टू द मैम दैट आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। उसने कहा कि मुझे पता है इसमें कितने मार्बल्स हैं। ऑल द चिल्ड्रन गेट सरप्राइज व्हेन मैम ऑल्सो सेड देन द आंसर गिवन बाय द फातिमा वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि जो फातिमा ने आंसर दिया वो एब्सोल्युटली करेक्ट था। नाउ अगेन इमेजिन द सिचुएशन, देर आर 2 बैग्स। मैम क्या करती हैं, एक बैग में से कुछ मार्बल्स निकाल के दूसरे बैग में डाल देती हैं और उसकी नॉट को बंद कर देती हैं। उसको उठाकर आपसे पूछती हैं कि इसमें कितने मार्बल्स हैं। तो एक लड़की कहती है कि मुझे पता है इसमें कितने मार्बल हैं। वो कहती है, मैम कहती है आपको गिनना भी नहीं है, आपको बैग को भी नहीं फाड़ना है, आपको मार्बल को गिनना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है ऐसा। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो लड़की क्या करती है, जो पहला बैग था जिसमें से मार्बल निकाल के मैडम ने उसमें डाले थे, उसमें से एक मार्बल को उठाती है और उसका वेट पैन में तराजू में तौलती है, तो वो 10 ग्राम आता है। फिर वो क्या करती है, वो जो सेकंड बैग जिसके अंदर मैम पूछ रही है कि कितने मार्बल्स हैं, उस बैग का वेट करती है, तो वो आता है 330 ग्राम्स। अब क्या करेगी फातिमा? टोटल जितने सेकंड बैग का वेट है उसको अगर एक मार्बल से डिवाइड कर देगी तो पता लग जाएगा कितने मार्बल्स हैं। तो इट मीन्स शी मस्ट हैव डिवाइडेड 330 grams with 10 grams। तो 330 ग्राम्स को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं 10 ग्राम से, तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 10 में ये 0 यू, ये एक 0 से कट जाएगी, तो कितने आ जाएंगे 30 मार्बल्स। तो ये उसका आंसर था एंड दिस वाज द राइट आंसर। दैट इज़ वाई मैम वॉज सरप्राइज टू नो। सो दिस इज़ टोटली मैथ्स। ये कोई मैजिक नहीं है, ये मैथ्स है। तो फिर क्या करते हैं हम, इसी तरह का कोई क्वेश्चन अगला मैम ने वर्कशीट में दिया हुआ है, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकंड बैग के। अगर हम किस तरह से कर सकते हैं उस मार्बल को कि जो दूसरा बैग है हमने ये मान लिया कि उसमें के नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, देन द वेट ऑफ ऑल द मार्बल्स ऑफ द सेकंड बैग मस्ट बी। अगर के नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, के नंबर ऑफ मार्बल्स, ये 10 मार्बल भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल है ना, तो हमें पता नहीं है कितने मार्बल हैं, तो हमने उसको मान लिया के। और अगर एक मार्बल का वेट 15 ग्राम है, तो जो सेकंड बैग है उसका टोटल वेट हो जाएगा 15 के, क्योंकि के क्या है, दैट इज़ द नंबर ऑफ मार्बल्स।
15 क्या है? वेट ऑफ वन मार्बल। तो एक मार्बल के वेट को जितने टोटल मार्बल है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15K इज़ द वेट ऑफ सेकेंड बैग। The weight of all the marbles in the second bag is 330 grams. और जितने मार्बल्स हैं टोटल उनका सेकेंड बैग में जो सेकेंड बैग का वेट है वो 330 है। देन द इक्वेशन बिकम्स, तो इक्वेशन क्या बन जाती है? 15K इज इक्वल टू 330। हमने जो बनाया कि 15K जो है वो 330 के इक्वल हो गया। एंड बाय 15 ऑन द बोथ साइड्स। अब एक मिनट ये समझिए आप जरा, मैं दोबारा से आपको इसको करके दिखाती हूँ कि पिछला वाला एग्जाम्पल छोड़ दीजिए क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में दे रखा था 10 ग्राम एक मार्बल का और यहाँ वेट उन्होंने एक मार्बल का दिया 15 ग्राम। तो ये थोड़ा इस वाले एग्जाम्पल से डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो बैग है हमारा पहला और दूसरा, इसमें खूब सारे मार्बल थे और वो मार्बल्स में से चलिए पहले बैग को हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि जो है हमारा बैग पहला थोड़ा बड़ा बना देते हैं हम। ये पहला बैग है, ये छोटा बैग है, इसमें बहुत सारे मार्बल्स थे, इसमें से कुछ मार्बल्स निकाल के इस वाले बैग में डाल दिए। अब ये हम जानना चाहते हैं कि इस बैग में कितने मार्बल्स हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि इस बैग में K मार्बल्स है। नंबर ऑफ मार्बल्स को क्या मान लिया? लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू K। अब एक मार्बल का वेट क्या है? तो वेट ऑफ वन मार्बल इज, वेट जो है मार्बल का है, एक मार्बल का 15 ग्राम। 15 ग्राम का एक मार्बल है और K मार्बल है इसमें, तो वेट ऑफ द सेकेंड बैग क्या हो जाएगा? 15 इंटू K, दैट इज 15K। जो यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है, ये देखिए कि 15K जो है वो उस बैग का वेट हो गया। पर एक्चुअली बैग का वेट क्या दिया हुआ है? 330। तो इसका मतलब सेकेंड बैग का वेट, तो मतलब 15K 330 के इक्वल हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई एक, दैट 15K इज इक्वल टू 330। अब इसमें देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल सिर्फ एक है K और K की जो पावर है वो 1 है। तो इसके बाद क्या किया कि अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करें? ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इसमें जो दिखाया हुआ है तरीका वो मैं पहले आपको बता दूं। 15K इज इक्वल टू 330। वो ये कह रहे हैं हमें वैल्यू निकालनी है K की। तो K की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट अ मिनट, हाँ, 15K इज इक्वल टू 330। तो हमें वैल्यू निकालनी है K की। तो इस K की वैल्यू निकालने के लिए इस 15 को हमें हटाना है। तो वो क्या कहते हैं कि जो भी हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे करेंगे। तो अगर 15K को हम 15 से डिवाइड कर दें तो हम इसको, अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो इसको भी हमें 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने इसको 15 को 15 से डिवाइड किया तो 15 से 15 कट गया, K बचा। और यहाँ हमने इसको 15 से डिवाइड किया तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 22 आ गया। तो जो 2 है K की वैल्यू आ गई वो 22 आ गई। इसका मतलब जो सेकंड बैग में मार्बल थे उनका नंबर था 22, जैसा कि आपके आंसर में दिखाया हुआ है। पर इसको करने का एक और भी तरीका होता है जो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटे बच्चों के लिए होता है। आगे आप 9th क्लास में जाने वाले हैं तो वो आप कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ। जैसे अगर हमारी ये इक्वेशन बन गई, ये तो हमारी इक्वेशन बनती ही है ना, जैसे ये इक्वेशन बनी हुई है, ये है हमारी इक्वेशन 15K इज इक्वल टू 330। तो सीधा सा आप क्या करते हो, जो K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो K आपका आ जाएगा 330 अपॉन 15 और फिर से आप डिवाइड करेंगे तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30,
15 to the 30, k इज इक्वल टू 22। तो इन दोनों में से जो भी आपको तरीका समझ आए वो कर सकते हैं, पर मैं आपको ये वाला तरीका करने को कहूँगी क्योंकि ये आप बार बार करते रहें हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें जो दिखाया हुआ है कंक्लूज़न क्या दिया हुआ है, पेन मीन्स तराजू। इसमें कहा है कि वी सॉ दैट द पेन इज़ अ सिंबल ऑफ इक्वलिटी। जो पेन है वो इक्वलिटी का सिंबल होता है। अगर इसको हम LHS कहें और इसको हम RHS कहें तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एक इक्वेशन में आपको पता है LHS RHS के इक्वल होते हैं। एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस इक्वेशन we will do the operation of addition, subtraction, multiplication and division on both the sides sharing equal amount or say another। अब वही जो मैंने कहा कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया गया है, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया है सॉल्व करके, इसमें ये एक तो यहाँ 15k होना चाहिए। तो ये 15 से यहाँ अगर डिवाइड किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी 15 से डिवाइड किया है। तो सेम नंबर से आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डिवाइड करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सेम नंबर से हम करते हैं, ठीक है। फिर आपका ये आ जाता है कि कंक्लूज़न इसमें दिया हुआ है। कंक्लूज़न क्या है आपका, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं या एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यही इसका कंक्लूज़न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया हुआ है एक इसमें कि रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल्स देन मीना। मीना के पास जितनी भी पेंसिल थी रवि के पास उससे 5 ज़्यादा हैं। इफ़ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल्स इन ऑल, और दोनों के पास अगर मिला के 19 पेंसिल्स हैं, हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना है। तो रवि और मीना के पास कितनी पेंसिल हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखते हैं, रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल्स देन मीना। तो किसके पास ज़्यादा है पेंसिल्स, तो रवि के पास ज़्यादा हैं पेंसिल्स। तो रवि के पास पेंसिल ज़्यादा हैं और मीना के पास कम है। कितनी ज़्यादा हैं, तो रवि के पास 5 पेंसिल ज़्यादा हैं और मीना के पास जितनी भी पेंसिल्स हैं उससे 5 पेंसिल ज़्यादा हैं। तो अगर हमें ये पता होता कि मीना के पास कितनी पेंसिल्स हैं तो हम ये इजीली निकाल सकते कि रवि के पास कितनी पेंसिल्स हैं। तो हमें ये नहीं पता कि मीना के पास कितनी पेंसिल्स हैं, तो हम सबसे पहले जो हमारा बेस है वही हम मान लेते हैं कि लेट मीना के पास जो पेंसिल्स हैं वो x हैं या p है, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। यहाँ p माना है इन्होंने तो हम भी उसको p ही मान लेते हैं। चलिए x की जगह हम कहते हैं कि लेट मीना हैज़ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स p। तो रवि के पास कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी, रवि के पास p तो जितनी मीना के पास हैं और उसमें +5 क्योंकि 5 उसके पास ज़्यादा हैं। तो जितनी मीना के पास पेंसिल्स हैं और जितनी रवि के पास पेंसिल्स हैं उन दोनों का अगर हम ऐड कर दें तो वो कह लें 19 हो जाती हैं वो पेंसिल्स, 19। तो इसका मतलब अगर हम p प्लस, ये मीना के पास पेंसिल थी, p + 5 ये रवि के पास पेंसिल थी, इन दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा 19। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, वेरिएबल एक ही है पर 2 बार आ रहा है p। तो p + p हो जाता है हमारा 2p + 5। इस p को आप कुछ भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास अगर लिखा होता है या 1 केला जमा 1 किला तो 2 केले हो जाते, 1 संतरा दूसरा संतरा तो 2 संतरे हो जाते। p को आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो ऐसे ही p + p हो जाता है 2p + 5 = 19। अब आपने सिक्स में सिंपल इक्वेशंस की हुई हैं, ये फिर बन गया लीनियर इक्वेशन। तो 2p किसके बराबर आ जाएगा, 19, इसमें से माइनस हो जाएगा 5 क्योंकि 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 2p
इज इक्वल टू आ जाएगा 19 में से 5 को माइनस करेंगे तो 14। अब 2p इज इक्वल टू 14 है, इसको ज़रा हम याद रखते हैं और ऊपर करते हैं कि 2p इज इक्वल टू 14 तक हम आ गए। इसके बाद जो 2 है वो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 14 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे, इधर नीचे आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो p इज इक्वल टू आ गया 7। अब ये p हमने क्या माना था? हमने p माना था लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स मीना हैज़। मीना के पास जितनी पेंसिल्स थी वो 7 है, तो रवि के पास पेंसिल्स कितनी हो जाएंगी? 7 + 5, क्योंकि जितनी मीना के पास है तो रवि के पास उससे 5 ज़्यादा हो जाएंगी, तो 12 नंबर्स ऑफ पेंसिल्स रवि के पास हो जाएंगी। या आप इसको अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं, रवि हैज़ पेंसिल्स 12 एंड मीना के पास जो पेंसिल्स हैं वो हैं 7। ये आपको क्लियर हो गया है मुझे लग रहा है। ये जो है 7 और 12। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है इसमें। अगला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो चुका है, अगला है वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स दैट वी कैन कन्वर्ट वन साइड और लेफ्ट साइड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। जनरली हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पर वेरिएबल रखते हैं और राइट साइड पर हम कॉन्स्टेंट्स रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। नंबर्स मीन्स कॉन्स्टेंट्स एंड द नंबर प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड विद द साइन ऑफ एडिशन, ठीक है। और वी सब्ट्रैक्ट दैट सेम नंबर फ्रॉम द राइट साइड। तो मैंने जैसे करने का आपको तरीका बताया कि जो लेफ़्ट साइड वाला है उसके साथ जो नंबर है आप उसको ज़ीरो बना सकते हैं। ज़ीरो बनाने के लिए उसमें प्लस भी कर सकते हैं, कोई सेम नंबर माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे अब फिर हम ये ले रहे हैं एक क्वेश्चन जो है आपका लेटेस्ट डू में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कि y - 7 इज इक्वल टू 27। ये आपका एक क्वेश्चन है, y - 7 इज इक्वल टू 27। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पेंसिल को। तो अब ये है y - 7 इज इक्वल टू 27। अब क्या करेंगे हम, y जो है इसको हम एक साइड रख लेंगे, और ये जो 27 है ये तो राइट हैंड साइड पे है ही, पर ये जो -7 है इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। -7 है तो यहाँ जाके हो जाएगा +7, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 27 और में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 34, तो y आ जाएगा 34। इसको एक तो ये करने का तरीका बताया, एक दूसरा तरीका भी मैं बार बार इसीलिए आपको समझाती जा रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, कि दूसरा तरीका हमारा ये है जो इस वर्कशीट में बताया गया है कि y - 7 इज इक्वल टू 27। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, y 27 तो है ही, इधर -7 है, तो इस y के साथ में जो भी है उसको ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ +7 कर दें। अगर हम यहाँ +7 कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी +7 करना पड़ेगा, तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो यहाँ y बचेगा, 0 हो जाएगा, और 27 में 7 ऐड होगा तो 34 आ जाएगा। आंसर सेम आएगा, लेकिन करने के लिए जो तरीका है वो पहले वाला ज़्यादा सही है क्योंकि वो हम बड़ी क्लासेस में करते हैं। इसके बाद इसलिए मैं उसी तरह से कराऊंगी। सेकंड फिर क्वेश्चन है आपका 7/2 L इज इक्वल टू 2/7। देखिए L की जो पावर है 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है, और इसमें 1 वेरिएबल है, ओनली L है, कोई और वेरिएबल नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं L, जस्ट अ मिनट, हाँ क्वेश्चन भी चला गया। (7/2 L इज इक्वल टू 2/7)
तो हम क्या करते हैं, L इज इक्वल टू 2/7, और जब इसको हम इधर की साइड लेके जाते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल इधर आता है, ये 2 ऊपर चला जाता है और ये 7 नीचे आ जाता है, तो ये हो जाता है 2/7। 7/2 को इधर ले जाएंगे जब हम, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 7 7 ज़ा 49, 4/49। और जो दूसरा तरीका है उसको फिर मैं करके दिखा दे रही हूँ, हालांकि मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रही है आपको, फिर भी करके दिखा दे रही हूँ। 7/2L इज इक्वल टू 2/7। अब इसको कैसे हमें करना है, तो 7/2 है L, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2/7 से, ठीक है। और इधर अगर हमने 2/7 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 2/7 ऑलरेडी पहले था, फिर हमें इसको भी 2/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 7/2 था, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो L रह गया। L इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और 7 7 ज़ा 49। आंसर बिल्कुल सेम आएगा जैसा हमने पहले किया था, बट मेरे हिसाब से पहला वाला जो है तरीका वो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो आप अब 9th क्लास में जाने वाले हैं, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो वो करना ज़्यादा आसान रहेगा। अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। अब पहले तो हम इस इक्वेशन को देखते हैं, 9u प्लस 2/7u। हालांकि u 2 बार आ रहा है, लेकिन एक ही वेरिएबल है। u के साथ अगर v आ जाता तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल हो जाती, पर क्योंकि u है यहाँ भी और यहाँ भी u है, इसलिए वेरिएबल एक ही है, तो ये और इसका पावर भी दोनों में एक ही है, तो ये लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल ही है। तो अब हमें क्या करना है, 9u में 2/7u को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 4 के इक्वल आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम u को कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा 9 प्लस 2/7। इसके u को भी और इसके u को भी हमने कॉमन बाहर यहाँ u ले लिया, इज इक्वल टू 4 ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो 7 9 ज़ा 63 और प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4, ये आ गया हमारा। तो अब हम इसे आगे अगर हम करते हैं तो ये हो गया 65/7, इसको मैं आगे ले जा रही हूँ, 67/5 7u इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया 65 हो जाएगा ना, 65/7u इज इक्वल टू 4। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू, जब ये इधर जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और 65 नीचे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 चौक 28/65। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो मुझे लग रहा है आपको ये इक्वेशंस समझ आ गई होंगी, और आप क्या करेंगे, इसी तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। हर वर्कशीट में आपको दिया जाता है कि आपको वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, घर में रहें, बाहर ना जाएं, डिस्टेंस बना के रखें, जब तक ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपना ध्यान रखें, ठीक है।